নমস্কাৰ, গুড আফটাৰনুন। সকলোকে এটা নতুন বিষয়লৈ আদৰিছোঁ। এই বিষয়টো হ'ল যে প্ৰতিযোগিতামূলক পৰীক্ষা কাৰণে অসমৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ প্ৰস্তুতি কেনেধৰণৰ হ'ব লাগে। আজি মই নীট, এডভান্স জেই, ইঞ্জিনিয়াৰিঙৰ বা NDA প্ৰস্তুতি সম্পৰ্কে আপোনালোকৰ আগত বক্তব্য ৰাখিম। কাৰণ মই যোৱা এটা বছৰ অসমৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ লগত ক্লাছ 9, 10, 11, 12 ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ লগত ইণ্টাৰেকশ্যন কৰাৰ পাছত দেখা পাইছোঁ যে অসমৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে বহু দেৰিকৈ নীট বা এডভান্স জেই বা NDA বা UPSC বা APSC প্ৰস্তুতিৰ সম্পৰ্কে ভাবে। আচলতে আমাৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক এই ক্ষেত্ৰত আমি বিশেষভাৱে সহায় কৰাৰ প্ৰয়োজন আহি পৰিছে। কাৰণ ভাৰতবৰ্ষৰ অন্য ৰাজ্যৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে যদি নীটৰ বা এডভান্স জেই বা ইঞ্জিনিয়াৰিঙৰ বা NDA বা CA প্ৰিপাৰেশ্যন কৰিব বিচাৰে, তেতিয়াহ'লে তেওঁলোকে ক্লাছ 9তে ষ্টাৰ্ট কৰে, ক্লাছ 9তে আৰম্ভ কৰে আৰু প্ৰস্তুতি। কিন্তু সেই ক্ষেত্ৰত অসমৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল, অসমৰ অভিভাৱকসকল বহু পিছ পৰি আছে। কাৰণ অসমৰ অভিভাৱকসকলে এই বিশেষ বিষয়টোৰ ওপৰত গুৰুত্ব প্ৰদান কৰা দেখা নাযায়, যাৰ কাৰণে আমাৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল অতি মেধাৱী হোৱাৰ স্বত্তেও ৰাষ্ট্ৰীয় পৰ্যায়ৰ যি প্ৰতিযোগিতামূলক পৰীক্ষা, সেই পৰীক্ষাত আমাৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে যি ধৰণে সফলতা লাভ কৰিব লাগিছিল, সেই ধৰণে সফলতা লাভ কৰা নাই। ইয়াৰ পিছত মূল কথা হ'ল যে এই ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক তেওঁলোকৰ বিদ্যালয়ৰ শিক্ষকসকলে এই বিষয়ৰ ওপৰত বিশেষভাৱে গুৰুত্ব দিয়া দেখা নাযায়। আৰু অভিভাৱকসকলেও এটা কথাৰ ওপৰত বিশেষভাৱে গুৰুত্ব দিয়ে, তেখেতসকলৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে যাতে মেট্ৰিকত ভাল নম্বৰ পায় বা হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰীত ভাল নম্বৰ পায়, এই কথাটোৰ ওপৰত বিশেষভাৱে গুৰুত্ব দিয়ে। এতিয়া কথাটো হ'ল যে মেট্ৰিকত ভাল নম্বৰ পালে তেওঁলোকৰ জীৱনটো ছাকচেছ হ'ব নহ'ব, সেইটো এটা আটাইতকৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ কথা। মেট্ৰিকত ভাল নম্বৰ পায় তেখেতসকলে মেডিকেল বা ইঞ্জিনিয়াৰিং বা NDA বা CAত এডমিশ্যন ল'ব নোৱাৰে। তাৰ কাৰণে তেখেতসকলে কি কৰিব লাগিব, ক্লাছ 11, 12 অৰ্থাৎ হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰীত ভাল নম্বৰ পাবলৈ সক্ষম হ'ব লাগিব। কিন্তু অসমৰ ক্ষেত্ৰত এই বিষয়টোৰ ওপৰত অসমৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল পাছ পৰি থকা দেখা যায়। যোৱা 20টা বছৰত অসমৰ পৰা আপোনালোকে দেখিছে প্ৰতি বছৰে মেট্ৰিক পৰীক্ষাত প্ৰায় 40ৰ পৰা 50জন ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে ষ্টেণ্ড কৰিবলৈ সক্ষম হয়। তেনেহ'লে যদি আমি 40জনকেও ছাত্ৰ ছাত্ৰী ধৰোঁ, তেতিয়াহ'লে যোৱা 20 বছৰত কি হ'ল, 800জন ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে মেট্ৰিকত ভাল ফলাফল ল'বলৈ সক্ষম হৈছে। কিন্তু কথাটো হ'ল এই 800জন ছাত্ৰ ছাত্ৰী যদি আমি তাৰ পিছৰ পৰ্যায়ত পৰ্যবেক্ষণ কৰোঁ, তাৰ মাত্ৰ 10% ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে জীৱনত সফলতা পাবলৈ সক্ষম হৈছে। ঠিক তেনেকৈ হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰীত যিসকলে কমাৰ্চ, আৰ্টছ আৰু ছায়েন্সত ভাল ফলাফল পাইছে, ভাল ফলাফল মানে ষ্টেণ্ড ৰেংক পাইছে, কিন্তু পোৱাৰ পিছতো যদি 20 বছৰত আমি যদি এই তিনিটা ষ্ট্ৰীমত চাওঁ, 100জনতকৈ যদি ষ্টেণ্ড কৰিছে, তেতিয়াহ'লে 20 বছৰত প্ৰায় 2000জন ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে সুনাম পাবলৈ সক্ষম হৈছে। কিন্তু এই ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ ওপৰত যেতিয়া পৰ্যবেক্ষণ কৰা হয়, তেতিয়াহ'লে ইয়াৰ মাত্ৰ 10% ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে এক্সিষ্ট কৰি আছে আৰু অনাগত সময়ত এটা ভাল কাম কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে। ইয়াৰ পিছৰ আঁৰৰ মূল কাহিনীটো হৈছে যে আজিও আমি অসমৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক নম্বৰৰ পিছত দৌৰি থাকিবলৈ শিকাইছোঁ। নম্বৰৰ পিছত দৌৰি থাকিলে নহ'ব। আচলতে আমি আমাৰ যিবিলাক ছাবজেক্ট যদি আঁতিগুৰি মাৰি পঢ়োঁ আৰু আমাৰ যদি মিছন এণ্ড ভিছন নাথাকে, আমাৰ যদি এটা এইম নাথাকে, আমি যদি আমাৰ ডাইৰেকশ্যন নাথাকে, আমি কোন দিশত গতি কৰিব লাগে, তেতিয়াহ'লে আমাৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল কেতিয়াও সুনাম কঢ়িয়াই আনিব নোৱাৰে। এতিয়া কথা হ'ল যে যদি নীটৰ বা ইঞ্জিনিয়াৰিঙৰ প্ৰিপাৰেশ্যন কৰা হয়, তেতিয়াহ'লে ক্লাছ 9, 10, 11, 12 কুৱেশ্যনবিলাক সোধা হয়। মই প্ৰথম নীটৰ ওপৰত কৈছোঁ যে নীটৰ পৰীক্ষা দিবলৈ হ'লে চবতকৈ বিশেষভাৱে গুৰুত্ব দিবলগীয়া বিষয়টো হৈছে বায়'লজি মানে হৈছে বটনী এণ্ড জুলজি, ফিজিক্স আৰু কেমেষ্ট্ৰি। এতিয়া কথা হ'ল
যে বটনী জুলজি ফিজিক্স এণ্ড কেমেষ্ট্ৰি এই বিষয়কেইটা যদি ক্লাছ 9ৰ পৰা যদি ভালদৰে পঢ়ি যোৱা হয়, আঁতিগুৰি মাৰি যদি ক্লাছ 9ৰ পৰা ৰেফাৰেঞ্চ বুক সহ পঢ়ি যোৱা যায়, তেতিয়াহ'লে তাৰ পিছত ক্লাছ 10ৰ কাৰণে সুবিধা হ'ব, ক্লাছ 10ৰ পিছত 11ৰ কাৰণে সুবিধা হ'ব, আৰু 11ৰ পিছত 12ৰ কাৰণে সুবিধা হ'ব। এতিয়া কথাটো হ'ল, যিসকল ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে নীটৰ পৰীক্ষা দিব বিচাৰিছে তেওঁলোকৰ এডভান্স প্লেনিং কেনেকৈ হ'ব লাগে। প্ৰথমে তেওঁলোকে 9ৰ কিতাপখন, 9ত মাত্ৰ 14টামান চেপ্টাৰ আছে, সেইখিনি চেপ্টাৰ 6 মাহৰ ভিতৰত কমপ্লিট কৰিব লাগে, আৰু লাষ্ট 3-4 মাহ সময় লগাব লাগে ক্লাছ 10ৰ চেপ্টাৰখিনি কমপ্লিট কৰাৰ ক্ষেত্ৰত। তাৰপিছত লাষ্ট 2 মাহ তেওঁলোকে নিজে পঢ়াৰ পিছত 9ৰ পৰীক্ষা দিব লাগে, পৰীক্ষাত নিশ্চিতভাৱে এটা ভাল ফলাফল পাব। তেতিয়াহ'লে আমি ক্লাছ 10ৰ মেক্সিমাম চিলেবাছ যদি 9তে কমপ্লিট কৰি ৰাখোঁ, তাৰপিছত আমি যদি ক্লাছ 10ত যাওঁ, 10ত যদি আমি 11ৰ চেপ্টাৰখিনি কমপ্লিট কৰি ৰাখোঁ, ঠিক তেনেকৈ 11ত যদি আমি 12ৰ চেপ্টাৰখিনি কমপ্লিট কৰি থাকোঁ, তেতিয়াহ'লে 12ৰ বছৰটো সম্পূৰ্ণ আমি কি হৈছে নীটৰ কাৰণে আমি প্ৰস্তুতি সম্পন্ন কৰিব পাৰোঁ। অৰ্থাৎ নীটৰ কাৰণে আমি পঢ়িবলৈ সুবিধা পাম, নীটৰ কাৰণে আমাৰ সময় পাম। গতিকে এই সময়খিনি যদি সৎব্যৱহাৰ কৰা হয়, তেতিয়াহ'লে মূল পৰীক্ষাৰ লগতেও নীট কোৱালিফাই ক্ষেত্ৰত সুবিধা হয়। যদি আমি লাষ্ট 4 ইয়েৰ্ছৰ কুৱেশ্যন পেপাৰবিলাক চাওঁ, নীটৰ কুৱেশ্যনবিলাক, তেতিয়াহ'লে জুলজি আৰু বটনীৰ কুৱেশ্যনবিলাক চোৱা যায়, তেতিয়াহ'লে ক্লাছ 9, 10, 11, 12ৰ ভিতৰতে সোধা দেখা যায়। ঠিক তেনেকৈ ফিজিক্স আৰু কেমেষ্ট্ৰিৰ ক্ষেত্ৰতো কুৱেশ্যনবিলাক সাধাৰণতে বাহিৰৰ পৰা নাহে। অৰ্গেনিক কেমেষ্ট্ৰি, ইনঅৰ্গেনিক কেমেষ্ট্ৰি, ফিজিকেল কেমেষ্ট্ৰি এইবিলাক যদি আমি ভালকৈ জানো, ঠিক তেনেকৈ যদি আমি ফিজিক্সত যদি আমি পৰ্যাবৃত্ত তালিকা ধাতুৰ সম্পৰ্কে যদি আমি ভালকৈ জানো, আমি যদি ইলেক্ট্ৰিচিটিৰ সম্পৰ্কে ভালকৈ জানো, আমি যদি শক্তি এনাৰ্জিৰ বিষয়ে যদি ভালকৈ পঢ়োঁ, আমি যদি প্ৰত্যেকটো বিষয় যদি আমি ভালকৈ পঢ়োঁ, মই ভাবোঁ যে মেট্ৰিকত ভাল ৰিজাল্টটো কৰিবই, হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰীত ভাল ৰিজাল্ট কৰাৰ লগতে নীটৰ প্ৰস্তুতিৰ বাবে তেওঁলোকৰ বিশেষভাৱে সুবিধা হ'ব। ঠিক একেদৰে ইঞ্জিনিয়াৰিঙৰ ক্ষেত্ৰত ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে ক্লাছ 9ৰ পৰাই গুৰুত্ব, কাৰণ গোটেই মেথছখিনি ক্লাছ 9তে পোৱা যায়। 9, 10ত যদি মেথছখিনি ভালকৈ পঢ়া যায়, ফিজিক্স কেমেষ্ট্ৰিখিনি যদি ভালকৈ পঢ়া যায়, মই ভাবোঁ 11, 12ত তেতিয়াহ'লে বিশেষ অসুবিধা নহয়। যদি ক্লাছ 10ত যদি আমি ত্ৰিকোণমিতিখিনি, জ্যামিতিকখিনি যদি ভালকৈ পঢ়ি আহোঁ, তেতিয়াহ'লে আমি নীট মানে এডভান্স জেই বা জেই পৰীক্ষা দিবৰ কাৰণে সহজ হয়। কিন্তু এতিয়া কথা হ'ল যে আমাৰ অভিভাৱকসকলে তেওঁলোকক এটা কথাই শিকে যে ক্লাছ 10ত ভাল নম্বৰ পাব লাগে, আৰু ভাল নম্বৰ পোৱাটোৰ ওপৰত গুৰুত্ব দিয়ে। কিন্তু ভাল নম্বৰতকৈ যদি প্ৰত্যেকটো বিষয় আঁতিগুৰি মাৰি তাৰ ৰেফাৰেঞ্চ বুক সৈতে যদি প্ৰিপিয়েশ্যন কৰে, তেতিয়াহে নম্বৰ পাব। আৰু ভাল নম্বৰ পোৱা মানে এটা কথা আমাৰ অসমত প্ৰচলিত আছে, ভাল নম্বৰ যদি বিজ্ঞান বা গণিত এই দুটা বিষয়ত বা এডভান্স মেথমেটিক্সত যদি ভাল নম্বৰ পোৱা যায়, তেতিয়াহ'লে এটা কথা আছে যে ছায়েন্সত ল'ব লাগিব। কেতিয়াও মাক বাপেকে বা শিক্ষকসকলে সেই ছাত্ৰজনক ৰেকি কৰিব নিবিচাৰে। আচলতে ছাত্ৰজনে কোনটো বিষয়ত তেওঁ ভাল পায়, আচলতে কোনোবা এটা গণিতত ভাল নম্বৰ পালেই যে গণিত বিষয়টো লৈ পঢ়িব লাগিব এনেকুৱা কথা নহয়। কাৰণ বহুতে কি হয়, নম্বৰ পাবলৈ গৈ ভালদৰে পঢ়ে, গণিতত ভালকৈ নম্বৰ পালে যে ইঞ্জিনিয়াৰ হ'ব এনেকুৱা কথা নহয়। গতিকে মাক বাপেকে তেওঁলোকক এটা মানসিক টেষ্ট কৰিব লাগে যে যিহেতু মাক দেউতাকে এজন ছাত্ৰক সৰুৰ পৰা পাইছে, তেওঁ ৰুচি কোনটো বিষয়ত আছে, তেওঁ মেডিকেলত যাব বিচাৰিছে নে, তেওঁ ইঞ্জিনিয়াৰিঙত যাব বিচাৰিছে নে, তেওঁ বিজনেছত যাব বিচাৰিছে নে, তেওঁ স্পৰ্টছত কাম কৰিব বিচাৰিছে নে, তেওঁ CA হ'ব বিচাৰিছে নে, তেওঁৰ মনৰ ভাৱটো বুজিবলৈ যত্ন কৰক। কিন্তু অভিভাৱকসকলে এনে ক্ষেত্ৰত বহু পৰিমাণে পিছ পৰি থকা দেখা যায়। কাৰণ অভিভাৱকসকলৰ এটা স্বাভিমান আছে, মই ডক্টৰ হ'ব নোৱাৰিলোঁ, মই ইঞ্জিনিয়াৰ হ'ব নোৱাৰিলোঁ। অসমত আচলতে আজিও ডক্টৰ ইঞ্জিনিয়াৰৰ ওপৰত বিশেষভাৱে গুৰুত্ব দিয়ে। ইয়াৰ উপৰিও যে CA আছে, CA পঢ়িব পাৰি, ইয়াৰ উপৰি MBAত এটা ভাল ফলাফল কৰি বিজনেছ মেনেজমেণ্ট পঢ়িব পাৰে, ছিংগাপুৰ বা বাহিৰৰ দেশৰ পৰা পঢ়ি পেলাই বহি থাকিব নাই, পাব্লিক এডমিনিষ্ট্ৰেশ্যনত পঢ়িব পাৰে, এনভাইৰমেণ্টেল চাইণ্টিষ্ট আদি পঢ়িব পাৰে, ছ'চিয়েল চাইণ্টিষ্টৰ কাৰণে ছ'চিয়লজি যদি ভাল ছাবজেক্ট ল'ব পাৰে। এই বিষয়বোৰ অসমৰ অভিভাৱকসকলে নজনাৰ বাবে কি হৈছে বিশেষভাৱে অসুবিধা হয়। গতিকে এই কথাটোৰ ওপৰত মই গুৰুত্ব দিবলৈ গৈছোঁ, যিসকল ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে নীটৰ পৰীক্ষা দিব বিচাৰে তেওঁলোকে ক্লাছ 9ৰ পৰাই যাতে ফিজিক্স, কেমেষ্ট্ৰি আৰু বায়'লজি বুলি ক'লে বটনী আৰু জুলজিখিনি যদি ভালকৈ পঢ়ি তাৰ যদি নোটছখিনি বনাই যায়, আৰু ক্লাছ 9তে
তিনিটা মাহমান যদি ক্লাছ 10ৰ ছাবজেক্টখিনি পঢ়িবলৈ যত্ন কৰে তেতিয়াহ'লে ক্লাছ 10ৰ লোডটো কমি যাব ঠিক তেনেকৈ ক্লাছ 10ত 11ৰ যদি 3 মাহমান সময় দিব পাৰি তেনেকৈ হ'লে 11ত 12ৰ যদি সময়টো লৈ ল'ব পাৰি তেতিয়াহ'লে 12ৰ যিটো বছৰ সেই বছৰটো সম্পূৰ্ণ নিটৰ বা ইঞ্জিনিয়াৰিঙৰ বা এডভান্স জেই বাবে প্ৰস্তুতি কৰিব পাৰিব কিন্তু আমাৰ ক্ষেত্ৰত অসমৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে ক্লাছ 10ত ভাল নম্বৰ পালে সায়েন্সত পঢ়িব আকৌ সায়েন্সত পঢ়াৰ পিছত যদি ভাল নম্বৰ নেপায় বা পালেও কি হয় ক্লাছ 12 পাছ কৰাৰ পিছতহে কি হৈছে নিট বা এডভান্স জেই বা জেই বা এনডিএ প্ৰস্তুতিৰ কাৰণে আগবাঢ়ি যায় কিন্তু এতিয়া কি হৈছে সৰ্বভাৰতীয় পৰ্যায়ত যদি আপুনি চাই ৰাজস্থানৰ কোটা আপুনি যদি চাই অন্ধ্ৰপ্ৰদেশ হায়দৰাবাদৰ কথা যায় তামিলনাডুৰ কথা যদি চাই ইউপি যদি কথা চাই বিহাৰ যদি কথা চাই দিল্লী যদি ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে এতিয়া ক্লাছ 6ৰ পৰাই যিসকল ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে আইআইটিত যাব বিচাৰে এনআইটিত যাব বিচাৰে বা বিভিন্ন টপ মোষ্ট ইঞ্জিনিয়াৰিংৰ আইএসসি ইণ্ডিয়ান ইনষ্টিটিউট অফ সায়েন্সত যদি যাব বিচাৰে তেওঁলোকে ক্লাছ মানে 6ৰ পৰাই প্ৰস্তুতি আৰম্ভ কৰে আৰু একে সময়তে অসমৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰী আকৌ ইয়াৰ কাৰণে প্ৰস্তুতি আৰম্ভ কৰে 12 পাছ কৰাৰ পিছত গতিকে আমি আমাৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ পৰা কেনে ধৰণে আশা কৰিম যে আমাৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে সৰ্বভাৰতীয় পৰীক্ষাত উজলি উঠক এই ক্ষেত্ৰত যোৱা দুটা বছৰত অলপমান পৰিৱৰ্তন হৈছে সৰ্বভাৰতীয় পৰীক্ষাত তথাপি ভাল ফল পাইছে কিন্তু এই ক্ষেত্ৰত মই এটা শলাগ ল'ব লাগিব অসমৰ পৰা আজি তাৰিখত মুছলিমৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে তেওঁলোকৰ অধ্যৱসায় বলত আপোনালোকে দেখিছে এইবাৰ টপ 100ত 60জনতকৈ ওপৰত নৰ্থ ইষ্টৰ 60জনতকৈ ওপৰৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল হৈছে মুছলিম ছাত্ৰ ছাত্ৰী গতিকে এইটো এটা অসমৰ বাবেও শুভ লক্ষণ আৰু ভাৰতবৰ্ষৰ বাবেও এটা শুভ লক্ষণ কাৰণ এই মুছলিম ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে তেওঁলোকৰ অধ্যৱসায়ৰ ওপৰত শিক্ষাৰ ক্ষেত্ৰত আগবাঢ়ি আহিছে কিন্তু আমাৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল বহু পৰিমাণে এই ক্ষেত্ৰত পিছ পৰি আছে যদি আপুনি মেডিকেলত চাওক ইঞ্জিনিয়াৰিঙত চাওক এনডিএত চাওক বা আপোনাৰ এপিএসসি পৰীক্ষাত চাওক মুছলিম কমিউনিটিৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে বিশেষভাৱে সফলতা পাবলৈ সক্ষম হৈছে এই সফলতাৰ মূল কাৰণ হৈছে তেওঁলোকে নম্বৰৰ পিছত দৌৰি নাথাকে তেওঁলোকে কনচেপ্টৰ ওপৰত দৌৰি থাকে যদি কনচেপ্ট ক্লিয়াৰ হয় তেতিয়াহ'লে নিশ্চিতভাৱে এই ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে ভাল ফল পাব ঠিক তেনেদৰে যিসকল ছাত্ৰ ছাত্ৰী মাক বাপেকে ভাবে যে ভৱিষ্যতে তেওঁ ছাত্ৰজনক আইএএছ বা এচিএছ বনাব খোজে তেতিয়াহ'লে সেই ছাত্ৰজনক কেনেদৰে তেওঁলোকৰ অধ্যয়ন কৰাব লাগে সেই ওপৰত ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে বিশেষ গুৰুত্ব দিব লাগে যে অধ্যয়নৰ ক্ষেত্ৰত সেই ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক শিক্ষকসকলে বা অভিভাৱকসকলে এটা কথা গুৰুত্ব দিব লাগে যে ক্লাছ 9ৰ পৰাই জিঅ'গ্ৰাফি হিষ্ট্ৰী পলিটি ইকনমিক্স আৰু ইংলিছ যিটো লেংগুৱেজ সেইটো যদি ভালকৈ পঢ়া যায় আৰু তাৰ নোটছসমূহ যদি ভালকৈ বনাই গৈ থাকে কাৰণ এপিএসসি বা ইউপিএসসি পৰীক্ষাত সাধাৰণতে ক্লাছ 9, 10, 11, 12ৰ জিঅ'গ্ৰাফি হিষ্ট্ৰী পলিটি ইকনমিক্স এণ্ড জেনেৰেল সায়েন্সৰ কুৱেশ্যন সোধা যায় 50% এনে ধৰণৰ কুৱেশ্যন সোধা যায় যদি ক্লাছ 9ৰ পৰাই এজন ছাত্ৰক যদি নিউজ পেপাৰৰ লগত নিউজ পেপাৰ অধ্যয়ন কৰিবলৈ শিকায় নিউজ পেপাৰ কেনেকৈ পঢ়িবলৈ লাগে তেতিয়াহ'লে ইউপিএসসি 50% বা এপিএসসি 50% কুৱেশ্যন কি সাধাৰণতে কি হয় এই মানে নিউজ পেপাৰৰ লগত আহে নিউজ পেপাৰ বুলি ক'লে যে ভাৰতবৰ্ষৰ বা আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় সম্বন্ধ ভাৰতবৰ্ষৰ লগত থকা আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় সম্বন্ধ বিভিন্ন বিষয়সমূহ দেশৰ বাবে ইম্পৰ্টেণ্ট বিষয়সমূহ বা ষ্টেটৰ ইম্পৰ্টেণ্ট বিষয়সমূহ যদি আমি ভালদৰে পঢ়ি যায় অনাগত সময়ত তেওঁলোকে যেতিয়া মেট্ৰিক পৰীক্ষা পাছ কৰি হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী পঢ়িব হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰীৰ পিছত ডিগ্ৰী পঢ়িব তেতিয়াহ'লে তেওঁলোকে বুজি উঠিব যে কেনে ধৰণৰ বিষয়সমূহ কম্পিটিটিভ এক্সামৰ কাৰণে দৰকাৰ কি বিষয়সমূহ পঢ়িলে এপিএসসি বা ইউপিএসসিৰ বাবে সুবিধা হয় সাধাৰণতে দেখা যায় অসমৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে যদি মানে কি হয় ক্লাছ 10ত পাছ কৰাৰ পিছত হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰীত সাধাৰণতে কি হয় নম্বৰটো ভাল ল'বৰ কাৰণে সাধাৰণতে যিবোৰ বিষয় লয় সেই বিষয়বোৰ আচলতে কম্পিটিটিভ এক্সামৰ লগত ডাইৰেক্ট বা প্ৰত্যক্ষভাৱে জড়িত নহয় ফৰ এক্সাম্পল এডুকেশ্যন ছাবজেক্ট ফৰ এক্সাম্পল এডভান্স আছামিজ লজিক এণ্ড ফিলচফি এই ছাবজেক্টবিলাক কি হৈছে ডাইৰেক্টলি কি হৈছে হেৰিয়াৰ লগত ইনভলভ নহয় মানে কম্পিটিটিভ এক্সামৰ লগত মানে ইনভলভ নহয় কিন্তু পৰীক্ষাত এটা ভাল নম্বৰ পায় কিন্তু আজিৰ যুগত প্ৰত্যেকটো পৰীক্ষাই কি হৈছে কম্পিটিটিভ এক্সামৰ ষ্টাইলটোত হ'বলৈ ল'লে
গতিকে সেই বিষয়সমূহ হৈছে জিঅ'গ্ৰাফি, হিষ্ট্ৰী, পলিটি, ইকনমিক্স। সেইকাৰণে মই ভাবোঁ হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰীত যেতিয়া এডমিশ্যন লয় আৰ্টছৰ এজন ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে, তেতিয়াহ'লে তেওঁলোকে জিঅ'গ্ৰাফি, হিষ্ট্ৰী, পলিটি, ইকনমিক্স এই ছাবজেক্টবোৰ ল'ব লাগে। এন্থ্ৰপ'লজি, ফিল'চফি এনেকুৱা ছাবজেক্ট ল'ব লাগে, যিবিলাক ছাবজেক্টে UPSCত সহায় কৰিব। UPSCত যিহেতু এটা অপশ্যনেল ছাবজেক্ট আছে। 2 নম্বৰ কথা আছে, যদি UPSC চিলেবাছখন চোৱা যায় তেতিয়াহ'লে GS পেপাৰখনত জিঅ'গ্ৰাফি আছে, হিষ্ট্ৰী আছে, পলিটি এণ্ড গভাৰ্নেন্স আছে, ইকনমিক্স আছে। তেতিয়া তাৰ কাৰণে কি হৈছে, বেছিক যিবিলাক বস্তু সেইবিলাক পঢ়িব লাগিব। বেছিক যিখিনি বস্তু ক্লাছ 9, 10, 11, 12 পঢ়িব লাগিব, কাৰণ 50% কুৱেশ্যন ৰিলেটেড টু ক্লাছ 9, 10, 11, 12 জিঅ'গ্ৰাফি, হিষ্ট্ৰী, পলিটি, ইকনমিক্স। আনাদাৰ 50% কুৱেশ্যন ৰিলেটেড টু হৈছে কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্स, सोशल इशूज, नेशनल इशूज, इकोनॉमिक इशू। সেইকাৰণে কি হৈছে, रेगुलर बेसिस में आपको पढ़ाई करना पड़ेगा। रेगुलर बेसिस में आपको ये सारे आपको आप सोच लेंगे जब मैं UPSC में जाना है तो क्लास 9 से ही ज्योग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स का क्लास अच्छा मतलब अच्छा करके जाना चाहिए। हम लोग के बीच में है मोहित सर है, इंडिया का वन ऑफ द बेस्ट एंड फाइनेस्ट ऑफ द हिस्ट्री टीचर है। आप दिल्ली से जुड़े हैं, आपको धन्यवाद देता हूँ। आप हमेशा ही असम का स्टूडेंट के बारे में सोचते हैं, असम का स्टूडेंट को आगे लेके जाने सोचते हैं, आपको धन्यवाद करता हूँ। हम लोग के बीच में है मेरे बेस्ट फ्रेंड है और क्विज में काफ़ी नॉलेज है और पिछले 10-15 साल से न्यूज़ के ऊपर काम कर रहे हैं। समीन कुमार सैकिया है, उनको भी मैं धन्यवाद देता हूँ। तो हम लोग क्या है, हम लोग सारे मिल के असम के लिए काम करना है, क्योंकि असम का एजुकेशन अभी भी काफ़ी पीछे है। क्योंकि असम की जो एजुकेशन सिस्टम है, जैसे नेशनल लेवल पे हम लोग का जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं उसमें हम काफ़ी पीछे रह गया है। बिकॉज हम लोग का जो प्लानिंग है, हम लोग का बच्चे का जो एम है, जो हम लोग का जो पेरेंट्स है, जो टीचर्स है, जो हम लोग का गार्जियंस है, वो कभी नहीं सोचते हैं प्लानिंग कैसा करना है और प्लानिंग करके कैसे पढ़ाई करना है। प्लानिंग अच्छा होता तो डॉक्टर्स भी बन सकते हैं, इंजीनियर भी बन सकते हैं, CA भी बन सकते हैं, MBA भी बन सकते हैं, मतलब पायलट भी बन सकते हैं, स्पेस साइंटिस्ट भी बन सकते हैं, एनवायरमेंटल साइंटिस्ट भी बन सकते हैं। क्योंकि हर सब्जेक्ट का काफ़ी इम्पोर्टेंस है, हर सब्जेक्ट को अच्छी तरह से आपको प्रिपरेशन करना चाहिए। तो इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, हम अभी से क्लास 9 से ही स्टार्ट करना पड़ेगा। आपका एम यदि इंजीनियर है तो क्लास 9 से क्या है, फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स अच्छी तरह से आपको पढ़ना है। साथ साथ जो उनका दूसरा सब्जेक्ट है इंग्लिश और आसामीज़ भी अच्छी तरह से पढ़ना है। तो ऐसे जिसको वहाँ जाना है, नीट का प्रिपरेशन करना है, उनका बायोलॉजी स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। बायोलॉजी मीन्स जूलॉजी एंड बॉटनी बहुत अच्छी तरह से पढ़ना है, केमिस्ट्री भी अच्छा तरह से पढ़ना है। क्योंकि आज के डेट में अच्छा कॉलेज मिलने के लिए कम से कम 600 एबोव मार्क्स मिलना चाहिए, तभी एक अच्छा कॉलेज मिलेगा। एम्स मिलना है तो 650 का एबोव मिलना चाहिए। तो इसी कारण से यदि जिसका बॉटनी एंड जूलॉजी अच्छा होते हैं वो हमेशा अच्छा रिजल्ट करते हैं, तो उसके ऊपर ध्यान रखना है। और जिसको UPSC प्रिपरेशन करना है वो क्लास 9 से ही उनका सिविक्स किताब, जो सोशल साइंस में ज्योग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, वो अच्छी तरह से पढ़ना है। ज्योग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटी अच्छी तरह से आपको पढ़ना है। हम लोग के बीच में जुड़ गया है दिल्ली से मेरा बेस्ट फ्रेंड है विमल झा जी है, आपको भी धन्यवाद देता हूँ। आप भी मेरे लाइफ में आ गया है, तो काफ़ी दिनों के बाद आपको मुलाकात हुआ है। वन ऑफ द बेस्ट फ्रेंड है और बहुत अच्छा नॉलेज रखते हैं हर फील्ड पे। तो बहुत दिन के बाद आपको मुलाकात हुआ है, बहुत बहुत धन्यवाद है। तो नेक्स्ट है जिसको NDA का प्रिपरेशन करना है, वो भी क्लास 9, 10, 11, 12 का अच्छी नॉलेज होना चाहिए। तो उनका बेस के ऊपर ही उनको NDA में व CDS में जा सकते हैं, लेकिन उसमें हम लोग का काफ़ी दिक्कत है। क्योंकि हम लोग के बच्चे को एक्चुअली क्या पढ़ना है, कौन से रेफरेंस बुक पढ़ना है और कैसे प्रिपरेशन करना है वो पता नहीं है। तो इसके ऊपर हम देखे हैं जो तमिलनाडु गवर्नमेंट, छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट, आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट, उड़ीसा गवर्नमेंट काफ़ी मेहनत कर रहा है। मैं असम का गवर्नमेंट को भी रिक्वेस्ट करता हूँ, तो बच्चे के लिए मतलब असम की कम से कम 10 ऐसा सेंटर बनाइए जहाँ बच्चे को अच्छा मौका मिले
तो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के प्रिपरेशन के लिए, क्योंकि गुवाहाटी में जो सुविधा है, दिल्ली में जो सुविधा है, गुवाहाटी में ऐसा सुविधा नहीं मिलते हैं, क्योंकि गुवाहाटी में टीचर्स और फैकल्टीज़ का थोड़ा दिक्कत होते हैं। दिल्ली में ऑल अवेलेबल है, हर तरफ का टीचर है, बेस्ट क्वालिटी का टीचर दिल्ली में मिलते हैं। लेकिन असम में हम लोग डाइस इंडिया की तरफ से काफ़ी कोशिश किया है। अभी असम में हमने बच्चे को दिल्ली से जो अच्छे एंड पॉपुलर जो प्रोमिनेंट टीचर है दिल्ली से लेके आए हैं, नीट का प्रिपरेशन के लिए, इंजीनियरिंग का प्रिपरेशन के लिए, एनडीए का प्रिपरेशन के लिए हम वहाँ से लेके आया था। हम अभी गुवाहाटी में भी शुरू किया, पिछले 2 साल से हम गुवाहाटी से काम किया था, स्टाफ कॉलेज में काम किया था, हम अभी माजुली में भी काम किया था। यहाँ का बच्चे का काफ़ी पोटेंशियल है, लेकिन यहाँ का जो एनवायरनमेंट है, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम का जो एनवायरनमेंट है, वो अभी काफ़ी पीछे है, क्योंकि यहाँ बच्चे मतलब पढ़ाई से ज़्यादा दूसरा जगह में टाइम देते हैं। क्योंकि बच्चे को पूरा एक टाइम दिन भर में कम से कम 3 आवर्स आपको टाइम देना पड़ेगा। जो बच्चे नीट के लिए सोचते हैं, जो बच्चे इंजीनियरिंग के लिए सोचते हैं, जो बच्चे सीए का प्रिपरेशन के लिए सोचते हैं, जो बच्चे एपीएससी यूपीएससी के लिए सोचते हैं, वो अभी से अच्छी तरह से उनको पढ़ाई करना पड़ेगा, और तभी जाके वो आगे अच्छा इंसान बन सकते हैं। अभी हम बच्चे के जो बच्चे मतलब नीट का प्रिपरेशन करना चाहते हैं, एडवांस जेई का प्रिपरेशन करना चाहते हैं, तो जो बच्चे फ्यूचर में यूपीएससी एपीएससी बा सीडीएस बा एनडीए का प्रिपरेशन करना चाहते हैं, वो बच्चे हमको कॉल कर सकते हैं। तो उनका टाइम मैनेजमेंट में कैसा होगा, वो कैसे पढ़ना है, कौन सी रेफरेंस बुक पढ़ना है, वो हर चीज़ पर हम लोग डाइस इंडिया गुवाहाटी हेल्प करेंगे। साथ साथ वो बच्चे को भी मदद करेंगे, कौन सी इंस्टीट्यूट में जाना है, कौन सी इंस्टीट्यूट में अच्छा टीचर है, कैसे पढ़ाई करना है, ऑल ओवर इंडिया में कहीं भी जाओ, कहाँ जाना है, अच्छा प्रिपरेशन कैसे होगा, लास्ट 5 ईयर्स का क्वेश्चन पेपर कहाँ से मिलेंगे, उनका लास्ट 5 ईयर्स का क्वेश्चन एंड सॉल्व पेपर कहाँ से मिलेंगे, और मॉडल क्वेश्चन पेपर कहाँ से मिलेंगे, हर जगह पे हम बच्चे को मदद करना चाहते हैं। तो आप हम लोगों के साथ कांटेक्ट कर सकते हैं। हम लोग क्या है, मैंने एक प्रोजेक्ट रखा है, जो प्राइम मिनिस्टर भी सोचते हैं नॉर्थ ईस्ट आगे बढ़ेंगे तो तभी देश आगे बढ़ेंगे। तो माय प्रोजेक्ट इस नॉर्थ ईस्ट का जो बच्चे हैं, नॉर्थ ईस्ट में जितनी जो ब्रिलियंट एंड इंटेलिजेंट जो बच्चे हैं, उनको आगे लेके आना है, और उनको जो हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में देश भर में उनका एक अच्छा नाम हो, देश भर में वो अच्छा काम कर सकते हैं उसी के ऊपर। क्योंकि यहाँ सबसे दिक्कत है, अभी भी जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम का माहौल है वो नहीं बना है, और पेरेंट्स का काउंसलिंग का सबसे जरूरी है, क्योंकि बच्चे के ऊपर दबाव बनाते हैं। मैं बार बार कह रहा हूं, अगर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ही लाइफ नहीं होते, बिजनेस करके भी अच्छा इंसान बन सकते हैं, बिजनेस करके भी अच्छा इंसान बन सकते हैं, मतलब स्पोर्ट में भी जाके अच्छा काम कर सकते हैं, स्पोर्ट्स में जाके अच्छा काम कर सकते हैं, बिजनेस में जाके अच्छा काम कर सकते हैं। तो हर सेक्टर में अच्छा काम कर सकते हैं, हर सेक्टर में अवेलेबिलिटी है। लेकिन अभी देखिए, भारत सरकार नॉर्थ ईस्ट में स्पोर्ट यूनिवर्सिटी बनाया था, असम गवर्नमेंट भी स्टेट स्पोर्ट यूनिवर्सिटी साबुआ में बनाया था। तो ये हर चीज़ को, लेकिन यहाँ का स्टूडेंट का पोटेंशियल भी है स्पोर्ट्स में, यहाँ का जो बॉडी अपीयरेंस है वो स्पोर्ट्स में भी काफ़ी अच्छा काम कर सकते हैं। लेकिन यहाँ का बच्चे को रोक दिया जाता है, क्योंकि यहाँ का पेरेंट्स हमेशा ही क्या है, एक बच्चे को 2-3 उनका ABC 3-4 ऑप्शन एक बच्चे को दे देते हैं। उसे बच्चे का जो एम इन लाइफ, जो बच्चे कैसे आगे बढ़ना है, वो रुक जाते हैं। उसके ऊपर हम लोगों को काम करना है। तो इसीलिए मैं सारे बच्चे को एक ही बात बताना चाहता हूँ, आप अपने मन का बात सुनिए और उनको पेरेंट्स के साथ शेयर करिए, और पेरेंट्स को बताइए जे मेरे को डॉक्टर नहीं बनना है, मेरे को इंजीनियर बनना है, नहीं तो मेरे को इंजीनियर नहीं बनना है, मेरे को यूपीएससी प्रिपरेशन करना है। बट काफ़ी मैंने देखा था पहले, वो पेरेंट्स की दबाव वजह से उन्होंने एनआईटी में इंजीनियरिंग में
एडमिशन ले लेते हैं, पास कर लेते हैं, उनके बाद दोबारा उनको जो उनको मन का था वो यूपीएससी पीपीएससी करना है। आपको लास्ट 5 ईयर्स का जो रिजल्ट है वो रिजल्ट आप देखो, उसमें 50% इंजीनियरिंग बैकग्राउंड ही स्टूडेंट पीपीएससी करते हैं। तो इतनी टाइम लगाना नहीं है। यदि आपको यूपीएससी में जाना है तो मेडिकल साइंस में 6 साल आपको क्यों लगाना है, तो आपको 3 साल लगा के ग्रेजुएट, 4 साल लगा के आप ग्रेजुएट बन जाइए, उनके बाद तुरंत एग्जाम दे दीजिए, क्योंकि आप तब हर चीज़ कवरेज कर सकते हैं। तो आपका एम जो है वो पक्का होना चाहिए। जो जिसको डॉक्टर में जाना है, मेडिकल में जाना है, तो वो उनको सोचना है मेरे को एमडी भी करना है, मेरे को मास्टर ऑफ सर्जिकल भी करना है, मेरे को बेस्ट डिग्री, मेरे को मेडिकल साइंस में पीएचडी भी करना है। क्योंकि इसमें क्या होता है, आप मेडिकल साइंस में एक सीट ले लेते हैं, लेकिन बाद में वो सीट आप छोड़ देते हैं। तो इससे क्या है, काफ़ी लोगों का जो आगे मेडिकल प्रिपरेशन करना है उनको भी दिक्कत होते हैं। जिसको जो सब्जेक्ट चुना है, जिसमें आप अच्छा परफॉर्मेंस करना चाहते हैं, उसमें आपको काम करना चाहिए मन, क्योंकि आपका पाँव 2 नाव में नहीं रखना चाहिए। आप हमेशा ही एक ही नाव पे चलने सीखो, एक ही डायरेक्शन में जाना सीखो, तंगा घोड़ा बन के रहो, मतलब आगे देखो। आपका एम एंड मिशन एंड विजन आपको क्लियर होना चाहिए। आपको सामने से क्या होने वाला है वो चीज को आपको देखना है। आप फ्यूचर के बारे में सोचना चाहिए। हर चीज के ऊपर आपको अच्छी तरह से काम करना चाहिए। मैं समझता हूँ यदि आपका एम इन लाइफ अच्छा होता है, आपका टाइम मैनेजमेंट अच्छा होते हैं, आप अच्छा काम कर सकते हैं। आपका एम इन लाइफ अच्छा होते हैं तो आप हर जगह में अच्छा रिजल्ट दे सकते हैं। अभी मैं एक ही बात कहता हूँ, जो लोगों का नीट का प्रिपरेशन करना है वो क्लास 9 पे शुरू कीजिए। जिसका एडवांस जेईई प्रिपरेशन करना है क्लास 9 से शुरू कीजिए। एनडीए भी क्लास 9 से शुरू कीजिए। सीडीएस भी क्लास 9 से शुरू कीजिए। हर सब्जेक्ट, हर एग्जाम आपको क्लास है। बिजनेस भी करना है, आपको कॉमर्स पढ़ना है तो क्लास 9-10 में आपको इकोनॉमिक्स का अच्छा समझ होना चाहिए। 11-12 में आप कॉमर्स में एडमिशन लीजिए। इकोनॉमिक्स, स्टैटिस्टिक्स के बारे में अच्छा जानकारी होना चाहिए। आगे जाके आप एमबीए कर सकते हैं। तो आप सब्जेक्ट सुनने में कभी आपको दिक्कत नहीं होना चाहिए। मोहित सर आप कैसे हैं? तो आप हमेशा ही मेरे को मदद करते हैं। असम के बच्चे को काफ़ी आप मदद करते हैं। पुटुल डेका भी नौलबाड़ी से हम लोग के बीच में है। उनको वो भी हम लोग का हर लाइफ में आते हैं और काफ़ी सुनते हैं। हम लोग के बीच में है हीरक आसाम भी है, उनको भी धन्यवाद देता हूँ। हम लोगों की यहाँ है पचान हजारिका भी है, वो भी सुन रहा है। तो आप लोगों को मैं एक ही रिक्वेस्ट करता हूँ, ये बात स्टूडेंट तक पहुंचाइए। स्टूडेंट को, अभिभावक को, जो पेरेंट्स है उनको सुनाइए। क्योंकि उनको, पेरेंट्स को जब हम मोटिवेट करेंगे, पेरेंट्स को जब हम कल्चर करेंगे, तभी हम लोग का बच्चे अच्छा रिजल्ट दे सकते हैं। नहीं तो पेरेंट्स बच्चे के ऊपर काफ़ी समय दबाव बनाते हैं। उसकी वजह से आप देखा था हर साल आईआईटी में स्टूडेंट सुसाइड करते हैं। वो आईआईटी जाना नहीं चाहते, लेकिन घर की दबाव, कोचिंग का दबाव, उसी से उनको आईआईटी में सीट मिल जाते हैं। किंतु आईआईटी जाके उनको अच्छा परफॉर्मेंस नहीं करना चाहिए। पिछली बार मेरे को एक स्टूडेंट को दिल्ली में मिला था, तो उन्होंने, उनका माताजी एंड पिताजी वो दोनों आईएएस में है, तो उन्होंने उनको लेके आया था। वो बच्चे आईआईटी दिल्ली से है, मैं नाम नहीं बताना चाहता हूँ। वो बच्चे को एडमिशन देने लेके आया था। जो एडमिशन होने के बाद बच्चे ने मेरे को कहा है, सर मेरे को आईएएस नहीं बनना है, तो मेरे मम्मी पापा ने दबाव बनाया है और मैं एडमिशन तो ले लिया हूँ, लेकिन मैं क्लास करने नहीं आऊँगा। मेरे पेरेंट्स मेरे को पूछेंगे, आपको पूछेंगे वो क्लास में आए कि नहीं आए, तो आपने बोल देना वो आया था। तब मैंने ईमानदार से बोला था, तो मैं यही बात नहीं बोल सकता हूँ, लेकिन मैं आपका पेरेंट्स से बात कर सकता हूँ। जब उनके पेरेंट्स से मैंने ये बात बताया था, वो मेरे ऊपर ही भड़क गया है। तो लेकिन बच्चे क्लास कंटिन्यू नहीं किया है। बाद में 5 साल बाद उनका पेरेंट्स जब मिला था, तो उन्होंने बताया था, राजीव जी आपने जो बात बताया था वो 100% सही था। मेरे बच्चे अभी क्या है, ईश्वर में, नासा में काम कर रहा है। उन्होंने रिसर्च किया था आईआईटी दिल्ली से, उनके बाद नासा में उनको एडमिशन, नासा में वो भी पोस्टिंग है, वो अच्छा काम कर सकता है। ये चीज़ें हैं क्योंकि कभी बार पेरेंट्स जिद्दी हो जाते हैं, और कभी ऐसा भी होते हैं स्टूडेंट भी जिद्दी हो जाते हैं, क्योंकि स्टूडेंट को वो काम करना नहीं है, पेरेंट्स दबाव बनाया है, बाद में वो फाइनली अच्छा रिजल्ट नहीं कर पाते, और तभी क्या है पेरेंट्स परेशानी में आ जाते हैं। तो इसी की और प्रिपरेशन जो कब करना है, कौन सी प्रिपरेशन कब करना है,
है, किस सही टाइम है, कौन सी किताब सही है, कौन सी रेफरेंस बुक अच्छा है, ये सारे चीज़ें जानकारी बच्चे को होना चाहिए। और उनके लिए मैं एक ही बात कहता हूँ, स्टेट गवर्नमेंट को एक ही बात कहता हूँ, नॉर्थ ईस्ट का सभी स्टेट गवर्नमेंट को एक ही बात कह सकता हूँ, बच्चे के लिए काउंसलिंग का व्यवस्था करिए। जब क्लास 9 में बच्चे एडमिशन लेते हैं उस समय बच्चे की काउंसलिंग करिए, उनका पेरेंट्स का काउंसलिंग कीजिए, उसी हिसाब से टीचर्स को भी काउंसलिंग करवाइए। तो उसमें एक आप ऐसे है जो अपग्रेडेशन में जो सुविधा है, जो टीचर अच्छा मदद करेंगे, जो टीचर का गाइडेंस से कोई एनडीए में गया है, कोई आईएएस में सिलेक्ट हुआ है, तभी उस टीचर को एक एडवांटेज भी देना चाहिए। तो इसी तरह से आपको प्रमोशन करना चाहिए। जिस स्कूल से काफ़ी बच्चे यदि इंजीनियरिंग, मेडिकल, एनडीए, सीडीएस में सिलेक्शन होते हैं, उस स्कूल के लिए गवर्नमेंट फाइनेंशियली हेल्प करना चाहिए, उस स्कूल को प्रमोट करना चाहिए। तब क्या है, असम में एक नॉर्थ ईस्ट में हर स्कूल में एक एनवायरमेंटल का माहौल बनेंगे और उसी माहौल से हम आगे बढ़ सकते हैं। और उसी विषय के ऊपर डाइस इंडिया दिल्ली एंड डाइस इंडिया गुवाहाटी पिछले 2 सालों से काम कर रहा है। 2 सालों से हम आगे बढ़ने के लिए काम कर रहा है। 2 सालों से हम बच्चे को आगे लेके जाना है। मैं हर सारे इंडिया में बोलना चाहता हूं, क्योंकि ये काम गवर्नमेंट को करना चाहिए, क्योंकि इस समय बच्चे के ऊपर काफी दबाव होने लगा है और बच्चे को उस दबाव से कैसे रिलैक्सेशन देना है, बच्चे कैसे आगे जाना है, बच्चे को किस तरीका से पढ़ाई करना है, बच्चे के हर चीज पे, खाने पीने से लेके हर चीज के ऊपर हम लोगों को काम करना चाहिए। तभी हम लोग का बच्चे आगे बढ़ेंगे, तभी हम विश्व गुरु बन सकते हैं। ऐसे हम कभी विश्व गुरु बन नहीं सकते हैं, क्योंकि हमने 20 साल लगा दिया है न्यू एजुकेशन पॉलिसी लागू करने के लिए। क्योंकि हम लोग का क्या है, हम लोग का यहाँ सारे होमवर्क की दबाव होते हैं। जब स्कूल जाते हैं बच्चे के ऊपर होमवर्क की दबाव बनाते हैं। यदि आप डेवलप कंट्री की बात करते हैं, यूएस, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान का बच्चे के बारे में, तो उनको होमवर्क लेस है। जो भी काम करना है उसको स्कूल के अंदर काम है। होमवर्क से ज़्यादा प्रैक्टिकल बातों को सिखाओ, क्योंकि पूरा भारत में सबसे दिक्कत है यहाँ प्रैक्टिकल एजुकेशन नहीं होते। थ्योरी बहुत पढ़ाते हैं, थ्योरी से काम नहीं बनेगा। प्रैक्टिकली उस बच्चे को आगे लेके आना। प्रैक्टिकल जब सिखाएंगे, प्रैक्टिकल के ऊपर फिजिक्स, केमिस्ट्री, हर चीज पे ऊपर यदि प्रैक्टिकल होते हैं, यहाँ एक सिविल इंजीनियर बन जाते हैं, लेकिन वो एक अच्छा नक्शा भी नहीं बना सकते, क्योंकि प्रैक्टिकल उनके ऊपर प्रैक्टिकली वो इतनी साउंड नहीं हुए। जैसे मेडिकल साइंस में भी एम्स में जो पढ़ाई करते हैं उनका काफी दिक्कत नहीं है, किंतु दूसरा मेडिकल कॉलेज में, क्योंकि एक ही बेस में 400 स्टूडेंट का एडमिशन होते हैं, तो 400 स्टूडेंट की एनाटॉमी के लिए इतनी बॉडी तो नहीं मिलेंगे जो प्रैक्टिकली वो मतलब ग्रो अप नहीं होते हैं। अब हम लोग क्या है, मतलब क्वांटिटी के ऊपर ज़्यादा वो ध्यान देते हैं, क्वालिटी के ऊपर भी गवर्नमेंट को ध्यान देना चाहिए। बेस्ट क्वालिटी एम्स बनाने से नहीं होगा, एम्स को मतलब अच्छा क्वालिटी टीचर मिलना चाहिए। अभी दिल्ली एम्स में जितनी भी अच्छा टीचर है, लेकिन बाहर जो एम्स है उसमें ऐसा टीचर्स नहीं होते हैं, क्योंकि एम्स में स्मॉल बेस है, 50 बिलो 50 का बेस होते हैं। तो बाकी आप इंस्टीट्यूट में आप देखेंगे मेडिकल कॉलेज में 200 से 300 स्टूडेंट का बेस बनते हैं। तो उससे क्या हुआ, अगर टेक्निकली वो बच्चे साउंड नहीं होते उस चीज़ के वजह से। आईआईटी में, इंजीनियरिंग में स्मॉल बेस होते हैं, लेकिन अदर जो प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में बड़ी बड़ी ग्रुप होते हैं, उससे बच्चे को पढ़ाई करने में, प्रैक्टिकल करने में काफ़ी दिक्कत होते हैं। इस चीज़ के ऊपर हम लोगों को ध्यान रखना चाहिए और हम आगे बढ़ने के लिए अच्छी ढंग से काम करना चाहिए, तभी हम अच्छा इंसान बन सकते हैं। और सारे देश को विश्व गुरु बनाने में सबसे इम्पोर्टेंट है हम लोगों का जो यंग जनरेशन को हम प्रॉपर गाइड करना चाहिए, क्योंकि नॉर्थ ईस्ट में अभी आसाम काफ़ी पीछे रहा है ना, क्योंकि यदि आसाम के बगल में ही है मणिपुर, हर साल 10 से 12 आईएएस ऑफिसर देते हैं, नीट में अच्छा परफॉर्मेंस है, मेडिकल इंजीनियरिंग में अच्छा परफॉर्मेंस है, एनडीए में अच्छा परफॉर्मेंस है, हर जगह में उनका अच्छा परफॉर्मेंस है। किंतु हम लोगों का स्टूडेंट का नॉलेज है,
लेकिन हम लोगों का स्टूडेंट को गाइडेंस देने वाला जो चीज़ें है वो नहीं है। क्योंकि मैं इसी कारण से बोल रहा हूँ, आसाम गवर्नमेंट का एक प्रोजेक्ट है, आरोहण प्रोजेक्ट है। इस प्रोजेक्ट के आधार में बच्चे को क्लास 10 में मतलब लेके आते हैं स्कूल से, गुवाहाटी में आके IIT मेडिकल, गुवाहाटी मेडिकल कॉलेज, यहाँ बड़ी बड़ी इंस्टीट्यूट विजिट कराते हैं, उनके बाद काउंसलिंग करवाते हैं। तो उसमें जो स्कूल का टॉपर है उनको लेके आते हैं। लेकिन मैं पिछले साल काफ़ी बच्चे के साथ इंटरेक्शन किया है, उन लोगों का भी एम नहीं है। बच्चे बोलते हैं यदि हम लोगों का क्लास 9-10 में मतलब मैथ्स और साइंस में अच्छा नंबर मिलेंगे तब हम साइंस में पढ़ेंगे, नहीं तो आर्ट्स में पढ़ेंगे। हम पूछेंगे आगे प्रिपरेशन 12th में यदि अच्छा नंबर मिलेंगे तब मेडिकल का प्रिपरेशन करूंगा। इस बच्चे को मैं समझता हूँ क्लास 8 में ही उनका काउंसलिंग करके उनका एम कैसा होना चाहिए, उस किस विषय पे आगे जाना है वो गवर्नमेंट करना चाहिए। क्लास 8 का हर स्कूल में 2-3 काउंसलिंग सेशन रखना चाहिए। तो इसके लिए सरकार टीम बनाना चाहिए और हर डिस्ट्रिक्ट का हर जो स्टेट वो है उसमें काउंसलिंग करना चाहिए। और स्टेट में जैसे आपको छत्तीसगढ़, राजस्थान, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश में बच्चे को काउंसलिंग के लिए, बच्चे को कॉम्पिटिटिव एग्जाम प्रिपरेशन के लिए जो सेंटर बनाए, उस टाइप का सेंटर मैं समझता हूँ गुवाहाटी, सिलचर, तेजपुर और डिब्रूगढ़ और जोरहाट में बनाना चाहिए। बंगाईगांव में कम से कम बच्चे को आसपास जो स्टेट डिस्ट्रिक्ट है वहाँ का बच्चे को क्लास मतलब सैटरडे एंड संडे बच्चे को गुड गाइडेंस कर सकते हैं। तो उसे असम के एक माहौल बनेंगे। आप देखिए इसी बार भी जो नीट में जितनी परफॉर्मेंस करना चाहिए वो अच्छा परफॉर्मेंस असम से नहीं हुआ है। आपको ठीक ऐसे एडवांस जेईई में जितने अच्छा परफॉर्मेंस होना चाहिए नहीं होना चाहिए। मेडिकल यूजी में जितना अच्छा परफॉर्मेंस होना चाहिए वो नहीं है। सीए में भी ऐसे ही है। हर जगह पे एनडीए सीडीएस में भी हम काफ़ी पीछे रहा है। तो मैं समझता हूँ आप लोग यदि चाहते हैं दिल्ली से अच्छे फैकल्टी को हम बुलाएंगे और गुवाहाटी में भी हम बच्चे को मदद करना, गुवाहाटी नहीं है बंगाईगांव, गुवाहाटी, तेजपुर, जोरहाट, सिलचर एंड डिब्रूगढ़ में और माजुली में बच्चे को हम मदद करना चाहते हैं। कोई भी प्रॉब्लम है तो इस विषय के ऊपर आप मेरे से बात कर सकते हैं। मेरा नंबर है 9811582118। मेरे 2 नंबर है, दूसरा नंबर है 6901277118। मैं आपको एक बार कोई दिसो दोबारा बोल दिया हूँ 9811582118। अनदर नंबर इज 6901277118। तो हम आप लोगों को आगे बढ़ाना चाहते हैं क्योंकि प्रिपरेशन का हर चीज पे पेरेंट्स का आज के डेट पे काउंसलिंग का बहुत जरूरी है। उस दिशा पे हम लोगों का काम करना है। देवाशीष कश्यप भी है हम लोगों के साथ है, उसको भी हम धन्यवाद देते हैं। आप भी मतलब हम लोगों के साथ जुड़ गए हैं। मैं आपको बताना चाहता हूँ पिछले 2 महीने से मैंने एडीआरई एग्जाम के लिए बच्चे को काफ़ी चीज़ें बताया था, उसी से मैं काफ़ी खुश हूँ। इसी कारण से खुश हूँ तो कम से कम मैं 2 लाख स्टूडेंट तक पहुँच गया था। और बच्चे मेरे को एग्ज़ाम के बाद फ़ोन करके बताया था सर जो आपने क्लास में बताया था, ऑनलाइन क्लास में बताया था, उसमें काफ़ी चीज़ें हम लोगों को मिले थे, उस रिलेटेड काफ़ी क्वेश्चन मिला था। तो यही चीज़ें मैं आपको बच्चे को बताना चाहता हूँ। और हमको एक ही काम करना है क्योंकि इस बच्चे को आगे लेकर आए। इसी कारण से मैंने काफ़ी पायलट प्रोजेक्ट बनाया था। असम के हर कोने का कई स्कूल मैंने ले लिया था, उस स्कूल को मैंने मदद कर रहा हूँ। ऐसे भी मैंने लखीमपुर में भी 2-3 स्कूल लेने के लिए सोच रहा है। तो हर महीने कम से कम 2 दिन उस बच्चे को जो प्रिपरेशन के लिए कैसे आगे बढ़ना है, काउंसलिंग के लिए, पेरेंट्स के काउंसलिंग के लिए मैं व्यवस्था कर रहा हूँ। ऐसे नारायणपुर में जिज्ञासा जातीय विद्यालय में हर महीने 2 दिन में रहूँगा। तो काउंसलिंग और बच्चे को किस विषय में लेना है, कैसे प्रिपरेशन करना है, कम समय में कैसे लिखना है, तो लिमिटेड वर्ड में आंसर क्या होना चाहिए और ऐसे राइटिंग कैसा होना चाहिए, करंट अफेयर्स का प्रस्तुति कैसे करना है। इसे असम में मैं कई जगह में ऐसा कोई स्कूल में मैंने जाने का प्लानिंग किया है। तो मैं समझता हूँ आप लोगों का कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी प्रश्न है तो आप मेरे को पूछ सकते हैं और आप लोगों को मदद करने के लिए हम हमेशा सचेत रहेगा, यही बात बता दिया हूँ। और इसमें कई गलतियाँ हो सकते हैं, इसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। फिर मिलेंगे एक अनदर एपिसोड में। जय हिंद, जय होम।